Hello, very good morning to all of you. And it's around 10, 12 a.m. And about 50 students have joined the class. So today we are going to have our first tutorial. In tutorial, we will try to solve some numerical problem to better understand the concepts we have been learning in previous classes. Okay, so we will be discussing few problems based on the concepts we have learned till now. हम लोगों ने फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी पढ़ा है अभी तक. फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में उसके दो वर्जन पढ़े हैं, एक क्लासिकल वर्जन, एक क्वांटम वर्जन. उस सब में कुछ कॉन्सेप्ट सीखे हैं, जैसे फर्मी एनर्जी क्या होता है और डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स क्या होते हैं, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, then Bose-Einstein, then Fermi-Dirac. So I will be explaining you some problems, some numerical problems, and I'm advising you to keep a notebook and pen with you so that you can solve problem with me. So quickly I will be telling what we have learned as of now, and then I will tell you the problems, and then I will tell some hints to solve it, and finally I will explain how to solve it. So we are in unit 1. We have been discussing free electron theory. And free electron theory, we have learned two versions of it, the classical version, and there were some problem with that. It was not able to explain some of experimental results. Then we tried to look at the assumptions, and to rectify the problems, we applied quantum mechanics to better understand, and it was successful in some sense, but still there is some problem. So we will be moving for next story in coming class. So these are the success and failure. Then we discussed different distribution systems. This is known as Fermi function, and what it tells the probability of occupation. कि कोई एनर्जी लेवल है वो ऑक्युपाइड है या खाली है, ये चीज हम लोग इसकी प्रोबेबिलिटी इस फंक्शन से निकालते हैं. Then we learn Fermi energy. Fermi energy is the level at 0 Kelvin, highest field level is known as Fermi level, and the energy for that is known as Fermi energy. So these are the few concepts we have learned. This is the Fermi function, and then we learn how this varies with temperature. And then to better understand how electron behave in a box, we applied quantum mechanics and solved Schrodinger equation, which is equivalent to the Newton's equation in classical physics. So we found this was the formula for energy, and we will be using these formulas to solve some problems. And these were the assumptions, success, and drawbacks of quantum free electron theory. Up to this we have learned in previous classes. Today I will be telling you some problems and why solving numerical problem is important. First of all, I want to tell you why it is important. Basically, जब हम numerical problem solve करते हैं तो हम जो concepts सीखे हैं उनको apply करते हैं. So when you apply the concepts, you better understand and better realize things. ऐसे क्या है, अभी हम लोगों ने उसको theoretically समझा है. जब हम उसका प्रॉब्लम करेंगे तो एक तरह से हम उसका एप्लीकेशन करेंगे, और जब हम कुछ एप्लीकेशन करते हैं तो और बेहतर तरीके से सीख जाते हैं. That is why in physics we do theory and do experiments. So directly, like we are trying to apply the understanding we have
acquired in previous classes. So these are two problems. I will be reading it and then I will try to explain how to solve it. And basically these problems are based on formulas we have learned, concepts we have learned in previous classes. So still people are joining the class, around 70 people are in the class as of now. So this is the problem number 1. And there are 2 problems we will be discussing today. And if you understand and solve it, you will learn a lot of concepts we have discussed in previous classes. So problem 1, I am reading the problem. A system of particles obeys Fermi-Dirac distribution, so that the probability of vacancy of an energy level delta E above the Fermi level EF is same as the probability of occupancy of an energy level delta E below EF. So EF is the Fermi level. Fermi level जो है उसको हम लोग EF से रिप्रेजेंट करते हैं and EF is tells the energy of that Fermi level. तो अभी हम लोगों को ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का क्या अप्रोच होना चाहिए? There could be a lot of problems on similar basis. So if you understand one, if you solve this one, you will be able to address all other problems related to these formulation. तो पहले तो जब भी कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है बेसिकली, तब हमको पहले उसको समझना चाहिए कि वो क्या क्या इसमें दे रखा है और क्या वो जानना चाह रहा है, क्या हमको प्रूव करना है. So first of all, read it quickly and find out the terms which you are familiar with. जैसे ये कह रहा है कि एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, मतलब बहुत सारे पार्टिकल हैं एक सिस्टम में. जैसे कि हम लोग बोल रहे थे कि एक कंटेनर में गैस भरा है, तो गैस के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, एटम्स कंटेनर में हैं, तो वो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स फॉलो करते हैं. यहाँ जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल है वो फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है. और फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन कौन फॉलो करते हैं? हम लोग ने पढ़ा है, ये फर्मियान्स फॉलो करते हैं. फर्मियान जिनका स्पिन हाफ इंटीजर होता है, मतलब हाफ, 3/2, 5/2, कुछ भी जिसका स्पिन होगा वो फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेंगे. तो हमको ये पता चल गया कि ये जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है ये बेसिकली फर्मियॉन्स है. और यही वाला प्रॉब्लम हम लोग समझने का कोशिश कर रहे हैं कि फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन्स में अप्लाई हुआ है, तो हम लोग इसी को थोड़ा बेटर तरीके से समझना चाहते हैं. तो ऐसा समझ ले कि कोई बॉक्स है, कोई कंटेनर है जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, तो हम लोग उनको वो वही सिस्टम होगा जिस सिस्टम की बात इस प्रॉब्लम में की जा रही है. फिर प्रूव क्या करना है ये सोचे. So that the probability of vacancy of an energy level delta E above the Fermi level EF. तो जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें कुछ नंबर ऑफ पार्टिकल्स है. तो फर्मी लेवल क्या होता है? वो एनर्जी लेवल होता है जो 0 डिग्री केल्विन पे हाईएस्ट फील्ड लेवल है. अगर टेम्परेचर 0 केल्विन नहीं है, कुछ ज्यादा है, कुछ अलग है, तो फर्मी लेवल वो एनर्जी लेवल होता है जिसके ऑक्यूपाई होने का प्रोबेबिलिटी 50% होता है या 1/2 होता है. तो ये कह रहा है कि ये दिखाना है हमको, ये प्रूव करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ वैकेंसी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी, प्रोबेबिलिटी ऑफ वैकेंसी, दो चीजें इसमें आ रही. एक प्रोबेबिलिटी ऑफ वैकेंसी और एक है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी. EF क्या है? फर्मी लेवल है. डेल्टा E क्या है? एक एनर्जी गैप है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी तो हम लोग फर्मी लेवल से जान गए थे. फर्मी जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन था, फर्मी फंक्शन, इट गिव्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी. कोई लेवल, कोई एनर्जी लेवल है, वो भरा है कि नहीं भरा है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये हमको मिलता है फर्मी फंक्शन से.
अब प्रोबेबिलिटी ऑफ वैकेंसी कैसे मिलेगा? तो सबसे पहले तो हम लोग को प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी मतलब प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कितने तक वेरी करती है। सो प्रोबेबिलिटी वैल्यूज फ्रॉम मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 हो सकता है और मिनिमम प्रोबेबिलिटी 0 हो सकता है। अगर पूरा कोई एनर्जी लेवल है, इफ इट इज ऑक्युपाइड then its probability will be 1. If it is empty, then its probability will be 0. So probability of vacancy is opposite to the probability of occupancy. मतलब अगर किसी का probability of vacancy 0 है तो उसका probability of occupancy 1 होगा। मतलब अगर वो खाली नहीं है तो वो भरा है, ऐसे समझे। तो occupancy and vacancy is just opposite to each other. So if we want to know probability of vacancy, then we subtract probability of occupancy from 1. Probability of vacancy will be equal to 1 minus probability of occupancy. तो ये रिलेशन हो गया। अब ये बोला है कि एक फर्मी लेवल होगा जहां पे EF, उसके डेल्टा ई एनर्जी ऊपर एक एनर्जी लेवल है, उसकी वैकेंसी की प्रोबेबिलिटी और एक एनर्जी लेवल डेल्टा ई नीचे है फर्मी लेवल के, उसकी ऑक्युपेंसी की प्रोबेबिलिटी दोनों बराबर होंगी। ऐसा हमको प्रूव करने के लिए कहा जा रहा है। प्रॉब्लम समझ में आया कि कोई डिस्ट्रीब्यूशन, कोई सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है जो फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, उसमें बोल रहा है कि फर्मी लेवल के डेल्टा ई एनर्जी ऊपर एक एनर्जी लेवल है जिसकी खाली होने की प्रोबेबिलिटी उस एनर्जी लेवल के बराबर होगी। मतलब जो लेवल डेल्टा ई एनर्जी लेवल नीचे है उसके भरे होने की प्रोबेबिलिटी के बराबर होगी। ये चीज हमको प्रूव करना है। सो हाउ वी कैन प्रूव इट? सो वन थिंग इज क्लियर, हम लोगों ने अभी तक जो सीखा है उसमें एक चीज सीखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्युपेंसी हमको मिलता है फर्मी फंक्शन से। फर्मी फंक्शन हम लोगों जस्ट पीछे जाके देखते हैं एक बार फर्मी फंक्शन क्या होता है। दिस इज फर्मी फंक्शन, दिस इज नोन एज, दिस गिव्स इट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्युपाइंग ऑफ एनर्जी लेवल इज गिवन बाय दिस। कोई एनर्जी लेवल ई आई है जिसके ऑक्युपाई होने की प्रोबेबिलिटी यहां से मिलती है। अगर कोई एनर्जी लेवल की वैकेंसी पता करनी होगी तो हम उसको 1 माइनस FEI करेंगे, इसको हम एक में से घटा देंगे तो वो प्रोबेबिलिटी ऑफ वैकेंसी मिल जाएगा। सो वी नीड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। कैसे सॉल्व करेंगे? एक तो फर्मी एनर्जी का कंसेप्ट पता है, दिस इज हाईएस्ट फील्ड लेवल, दिस गिव्स फर्मी एनर्जी। फिर बोला डेल्टा ई लेवल नीचे, डेल्टा ई लेवल ऊपर। तो हम लोग को एक एनर्जी लेवल मान लें जो यहाँ पे है, इससे नीचे है डेल्टा ई, उसको हम लोग बोले E1 है। एक ऊपर मान लें उसको बोले E2 है, और E2 E1 जो दोनों हैं वो बेसिकली फर्मी लेवल से बराबर ऊपर नीचे है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। प्रूव क्या करना है, पूछ क्या रहा है। तो जब हम ऐसे प्रॉब्लम को समझ लेते हैं देन इट इज इजी फॉर अस टू सॉल्व। विदाउट अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम आवर अप्रोच विल बी मोस्ट ऑफ टाइम हम लोग कुछ न कुछ गड़बड़ करेंगे अगर हम प्रॉब्लम को सही से समझेंगे नहीं। तो कभी भी जब भी कुछ एग्जाम में सवाल पूछा जाए तो वी शुड रीड इट 2 times at least to better understand what it is asking. So first we will try to understand this problem, then we will try to address second problem. So this is the way I had solved it. So I can explain it to you, and if still you don't understand, let me know, and you need to solve it on your copy, then you will be better understanding this.
So क्या करते हैं हम लोग? Let us try to understand the way we are approaching the problem. This is the same problem. It is written here. So first, what we do? Let the energy level above the Fermi energy EF is even. तो हम लोग ऐसे माने कि जो एनर्जी लेवल के ऊपर डेल्टा ई एनर्जी लेवल है, डेल्टा ई एनर्जी ऊपर जो लेवल है उसको हमने बोला कि दिस इज E1. सो देन E1 इज इक्वल टू डेल्टा ई इज इक्वल टू E1 माइनस EF. E1 जो एनर्जी लेवल है उसमें से अगर EF घटा देंगे तो वही एनर्जी गैप बचेगा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है. क्वेश्चन में बोल रहा है कि EF से जो है एनर्जी लेवल डेल्टा ई का गैप है. डेल्टा ई एनर्जी इज द गैप. सो डेल्टा ई इज इक्वल टू E1 माइनस EF. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी फॉर E1, जो E1 हम लोग बोले थे उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी इज गिवन बाय दिस इज द फर्मी फंक्शन. वी हैव रिटन F E1 is equal to 1 upon exponential E1 minus EF by KT plus 1. This is the same function which we have explained before. अब यहाँ पे E minus EF यहाँ से हम लोग यूज कर ले रहे हैं. E1 minus EF is delta E, so it comes like this. So 1 upon exponential delta E upon KT plus 1. This is the probability of occupancy for this energy level. Now, if we want to know probability of vacancy, then what we will do? We will subtract it from 1. So 1 minus FE1, which is given by 1 minus 1 upon, this is the same function. This is the same function, it is subtracted from 1. तो अब इसको हम simplify करेंगे, तो this will become like this. Like if you take this whole in this, तो ये ऐसे सिंप्लीफाई हो जाएगा. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग एज अप टू दिस. फिर हम लोग बात कर रहे हैं जो दूसरे एनर्जी लेवल की बात किया जा रहा है, जो बोल रहा है EF से डेल्टा E बिलो है. तो हमने कहा कि वो लेट अस से दिस इज एनर्जी लेवल E2, इसका नाम E2 रख दे. सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी फॉर एनर्जी लेवल E2 बिलो EF व्हेन EF माइनस E2 इज डेल्टा ई. तो जो गैप है वो डेल्टा ई दोनों में है, तो दिस विल कम लाइक दिस. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी इज गिवन बाय फर्मी फंक्शन. सो डेल्टा दिस FE2 इज इक्वल टू दिस, एंड देन you put this value here, so it becomes 1 upon e to the exponential minus delta E upon KT plus 1. तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी यहाँ है. अब इसको क्या कर रहे हैं? सिंप्लीफाई कर रहे हैं थोड़ा सा, कि अगर हम इसको माइनस डेल्टा ई है इसको 1 अपॉन करके करें तो ये प्लस हो जाएगा. सो दिस विल, इफ यू सिंप्लीफाई दिस विल बिकम द सेम फंक्शन, एक्सपोनेंशियल डेल्टा ई अपॉन केटी 1 अपॉन 1 प्लस एक्सपोनेंशियल डेल्टा ई अपॉन केटी. And if you look at this, probability of vacancy of an E1 is given by this function 1 upon 1 minus FE1. This is the value, and probability of occupancy of energy level E2 below EF is given by this. And if you see, this one is equal to this one. ये दोनों same function है. So क्या हो गया? FE2 is equal to 1 minus FE1. So FE2 is the probability of occupancy for energy level E2, which is below delta E from Fermi function. And probability of vacancy is given by this 1 minus FE1. So this is the, and both are equal. So we have proved this probability of occupancy of energy level below EF is same as probability of vacancy of energy level above delta E from energy level E. So this is how we can solve the problem. If we understand the concept, we will be able to solve the problem. So if you look, this was the problem, and first we try to understand what it is asking, then we apply this formulation, and we are able to prove it.
तो मैंने क्या किया, एक प्रॉब्लम पहले पढ़ा, फिर उस प्रॉब्लम को डिकोड किया, एक तरह से उसको हमने समझा कि क्या कहना चाह रहा है, देन वी अप्लाइड आवर अंडरस्टैंडिंग इन अ वे दैट कैन प्रूव इट, वी कैन प्रूव इट। तो ये अभी अगर सबको समझ में आ गया है, दिस इज वेरी गुड। अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो वो लोग अभी कुछ जो उनको समझ में नहीं आया है, दे कैन आस्क एनीथिंग, देन वी कैन मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। So you will be having a lot similar problems to solve. So this is No queries. yes. So I hope everybody understood. No Yes, sir, no एक बार one और is- समझाइए। हाँ, क्या समझ नहीं आया बताओ। सर फिर से स्टार्टिंग से समझाइए सर। यस सर, स्टार्टिंग से एक बार बता दीजिए। सर स्टार्टिंग समझाइए। हेलो सर। ओके, एक बार मैं फिर से समझाता हूँ। अब की बार जब समझ नहीं आएगा तो ये बताना पड़ेगा कि क्या समझ नहीं आया है। ऐसे लेट अस, आई विल एक्सप्लेन वंस मोर होल थिंग। पहला प्रॉब्लम ये है कि कुछ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है जो फर्मी डिराक क्वेश्चन समझ में आ गया। हाँ ठीक है, फिर से समझा रहा है, कुछ लोगों को समझ नहीं आया तो आई एम टेलिंग एक्सप्लेनिंग थिंग्स फ्रॉम स्टार्टिंग। अभी भी अगर समझ नहीं आएगा देन यू हैव टू टेल मी कि व्हाट यू डिडंट अंडरस्टैंड। सो ये बोले कि कुछ सिस्टम ऑफ पार्टिकल है जो फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करते हैं। तो फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन हमको पहले से पता है। प्रूव करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ वैकेंसी ऑफ एन एनर्जी लेवल डेल्टा ई एबव द फर्मी लेवल। एक फर्मी लेवल है, फर्मी लेवल हम लोगों ने पहले सीख लिया है कि फर्मी लेवल क्या होता है और फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो बोल रहा है कि कोई एनर्जी लेवल है जो फर्मी लेवल से डेल्टा ई एनर्जी ऊपर है, उसके प्रोबेबिलिटी ऑफ वैकेंसी, उसके खाली होने की प्रोबेबिलिटी, वो ऑक्युपाइड नहीं होगा, वहां पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा या कोई सिस्टम का पार्टिकल नहीं होगा, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बराबर है। किसके बराबर है? एक एनर्जी लेवल है जो फर्मी एनर्जी से डेल्टा ई एनर्जी लेवल एनर्जी नीचे है, उसके भरे होने की प्रोबेबिलिटी दोनों बराबर है एक दूसरे से। मतलब एक एनर्जी लेवल जो फर्मी लेवल से ऊपर है उसके खाली होने की प्रोबेबिलिटी उसी के बराबर एक दूसरा लेवल है जो फर्मी लेवल से नीचे है, उसके भरे होने की प्रोबेबिलिटी दोनों बराबर है। ये हमको प्रूव करना था। सो व्हाट वी डिड, हमने कहा कि जो फर्मी लेवल के ऊपर एनर्जी लेवल है उसका हमने नाम दिया E1 और जो नीचे लेवल है उसका नाम दिया E2। दोनों में कॉमन क्या है कि दोनों का जो गैप है फर्मी लेवल से डेल्टा ई है। एक E1 जो है डेल्टा ई ऊपर है और जो E2 है वो डेल्टा ई नीचे है। तो हमको फर्मी फंक्शन से पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेशन निकालना हमको आता है। तो कोई भी फंक्शन का कोई भी एनर्जी लेवल का अगर हमको एनर्जी पता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेशन हम निकाल सकते हैं। किससे? फर्मी फंक्शन से। फर्मी फंक्शन इज गिवन बाय दिस, ये फर्मी फंक्शन है, वहां पे हम एनर्जी दे देंगे। अब एनर्जी जो E1 हमने मानी थी वो बेसिकली है क्या, ये हम लोग देखें तो E1 इज डेल्टा ई प्लस EF, मतलब डेल्टा ई एनर्जी ऊपर है फर्मी फंक्शन से, तो ये रिलेशन हुआ डेल्टा ई इज इक्वल टू E1 माइनस EF। ये इक्वेशन हम लोग ऐसे लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे हमको E1 माइनस EF डायरेक्ट टर्म मिलता है, सो वी कैन पुट डेल्टा ई हियर। तो यहाँ पे डेल्टा ई रख दिया गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेशन E1 का मिल गया ये। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ वैकेंसी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वैकेंसी प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेशन के उल्टा होता है और टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होता है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ वैकेंसी हो गया 1 माइनस F1। इसको अगर हम 1 से घटा देंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वैकेंसी मिल जाएगा। सो वी रोट द सेम फंक्शन 1 माइनस दिस फंक्शन। अब इसको सिंप्लीफाई किया गया। ये सिंप्लीफिकेशन इज वेरी इजी, एवरीबॉडी नोज दिस एलिमेंट्री मैथमेटिक्स कि इसको हम पूरा कॉमन ले लेंगे तो ये फंक्शन यहाँ चला जाएगा
और इसमें से जब 1 1 घटेगा तो ये 1 1 कट जाएगा और दिस फंक्शन विल बी देयर। तो यू हैव टू डू इट इन योर नोटबुक। अगर इफ यू डोंट डू दिस देन मे बी कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको ये फंक्शन से ये फंक्शन कैसे आ रहा है ये यही समझ में ना आ रहा हो। तो ये समझने का ये बहुत सिंपल मैथमेटिक्स है, इसको मतलब कॉपी पेन करके करना पड़ेगा। इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि इसको एक्सप्लेन किया जाए। You have to take this whole common, this thing will go there, and then 1 1 will cancel out, and you will have this function. Now stop here. Let's look at the different energy level. This is E2, which is below the Fermi level. Delta E, energy below the Fermi level. तो इसका रिलेशन ये आ गया, डेल्टा E is equal to EF minus E2. तो जो डेल्टा E है वो बेसिकली बिलो है, तो ये रिलेशन बनेगा। तो ऑक्यूपेंसी अभी इसमें तो ऑक्यूपेंसी ही पूछ रहा है, तो हम लोग लिखेंगे Fe2 and this will become like this. Now you put this value here. So here क्या है, EF E2 minus EF है। यहाँ पे EF minus E2 is equal to डेल्टा E है, तो ये हो गया माइनस डेल्टा E। तो ये फंक्शन आया माइनस डेल्टा E। अब माइनस डेल्टा E है तो E to the power -1 है, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं 1 upon E। नीचे लाएंगे तो उसका पावर प्लस हो जाएगा, तो इसको 1 अपॉन लिखो, फिर पूरा कॉमन लो, तो दिस फंक्शन विल बिकम लाइक दिस, एक्सपोनेंशियल डेल्टा E अपॉन kt 1 upon 1 plus exponential delta E upon kt, and this is same as this function is same as this function, so it means Fe2 is equal to 1 minus Fe1, और यही हमको प्रूव करना था। दिस इज व्हाट वी वांटेड टू प्रूव कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी ऑफ E2 इज सेम एज प्रोबेबिलिटी ऑफ वैकेंसी ऑफ E1। तो मैंने फिर से समझाया, अभी भी अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो बताएं। हाँ सर यहाँ से समझा दीजिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी ऑफ एनर्जी लेवल E2 बिलो EF, यहाँ से समझा दीजिए एक बार। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी ये यहाँ से बता दीजिए, यहाँ से समझा दीजिए। तो दूसरा जो एनर्जी लेवल हमने बोला E2 हम उसको मान रहे हैं जो फर्मी फंक्शन से डेल्टा E एनर्जी गैप नीचे है, तो ये E2 क्या हो जाएगा, EF माइनस डेल्टा E। अब उसी इक्वेशन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, EF माइनस E2 इज इक्वल टू डेल्टा E, मींस E2 इज इक्वल टू EF माइनस डेल्टा E, EF से डेल्टा E एनर्जी कम। तो ये यहाँ पे हो गया, ये हम लोग इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि फर्मी फंक्शन में एक डायरेक्ट टर्म ऐसे ही आता है, तो वहां पे हम डेल्टा E लिख लेंगे। E1 E2 तो हमने माना है एनर्जी, ये ऐसे E1 E2 तो दिया नहीं, दिया तो ये है कि एनर्जी गैप सेम है दोनों का। तो ये इक्वेशन को फिर हम लोग फर्मी फंक्शन लिखेंगे। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी इज गिवन बाय फर्मी फंक्शन। जो भी पार्टिकल फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करते हैं उनका प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी इज गिवन बाय दिस फार्मूला। हम लोगों ने जो 3 सीखा है उसमें फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन में ये फार्मूला हम लोगों ने पहले सीख रखा है। तो यहाँ पे E2 माइनस EF है, इफ यू सी दिस इज E2 माइनस EF इन फर्मी फार्मूला, और यहाँ पे EF माइनस E2 इज इक्वल टू डेल्टा E, तो E2 माइनस EF विल बी माइनस डेल्टा E, तो यहाँ पे माइनस डेल्टा E आ गया। सो दिस बिकम 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल डेल्टा माइनस डेल्टा E अपॉन kt प्लस 1। अब ये फंक्शन हमको मिल गया, अब हमको इसको और सिंप्लीफाई करना है। तो और सिंप्लीफाई में क्या करेंगे, अगर कोई भी फंक्शन है उसकी पावर -2 है, मान लो -1 है, कुछ भी है, तो उसको हम 1 अपॉन करें तो माइनस प्लस हो जाएगा। सो यू कैन पुट इट लाइक एक्सपोनेंशियल माइनस डेल्टा E अपॉन kt, इसकी जगह पे हम लोग देख सकते हैं 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल डेल्टा E अपॉन kt। ये माइनस जब इसको हम नीचे रखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, फिर पूरा कॉमन ले लें तो हो जाएगा 1 प्लस दिस 1 प्लस एक्सपोनेंशियल डेल्टा E अपॉन kt, और ये जो नीचे था ये नीचे जब फिर उसको हम सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। सो दिस विल बिकम एक्सपोनेंशियल डेल्टा E अपॉन kt अपॉन 1 प्लस एक्सपोनेंशियल डेल्टा E अपॉन kt, and if you see this function is same as this function, so Fe2 is equal to 1 minus Fe1, and this is what we were supposed to prove. Sir. So now I hope everybody understand how we are. Sir.
हेलो सर। हाँ बोलो। सर ये जो ऊपर सर लिखा था ना कि अबव द फर्मी एनर्जी ईएफ बी इवन, हम्म, तो सर ये प्लस क्यों नहीं होगा? ऊपर है ना, नीचे की साइड थोड़ी ना है। कहाँ पे? ये पहले बोल रहे हो यहाँ पे? हाँ ये सर। तो फर्स्ट हाँ सर वहीं फर्स्ट पे। पे। हाँ सर। तो इसको जरा सॉल्व करो। यहाँ पे E1 को इधर इधर E1 को इधर रखो, EF इधर जाएगा तो इट विल बिकम E1 इज इक्वल टू दिस इक्वेशन, रिसेप इट, E1 इज इक्वल टू EF प्लस डेल्टा E बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा सर, बनेगा। तो यही एबव द फर्मी लेवल, मतलब EF प्लस डेल्टा E, यही एबव हो गया। इसको अगर सॉल्व करोगे तो E2 इज इक्वल टू EF माइनस डेल्टा E, तो ये बिलो हो गया। तो इसको ओके अपनी सर। कॉपी पेन में एक बार करेंगे तभी बेहतर तरीके से समझ में आएगा। सो यू मस्ट डू इट इन योर नोटबुक लाइक आई हैव डन इट एंड स्कैन करके इसको यहाँ पे डाला है। ऐसे ही तुमको अपनी कॉपी पेन में इसको सॉल्व करना है। तो इसमें फायदा क्या हो रहा है इस प्रॉब्लम को करने से? एक तो हम लोग फर्मी लेवल क्या है ये समझ में आ जा रहा है, फिर जो फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, उसका एक तरह से हम एप्लीकेशन कर रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम वी आर बेटर अंडरस्टैंडिंग द कांसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी, जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी, प्रोबेबिलिटी ऑफ वैकेंसी दोनों कैसे रिलेटेड हैं, प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम 1 होता है, मिनिमम 0 होता है, ये चीज समझ में आया। तो एक तरह से हम लोग जो कई सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे थे उन कॉन्सेप्ट को यहाँ पे हम सीख पाए। सो दैट इज व्हाई वी डू न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एंड और प्रॉब्लम्स ऐसे तरह की कुछ प्रॉब्लम्स ढूंढेंगे एंड देन आई विल गिव यू एज एन असाइनमेंट and you solve it and submit it later on. But this is how we will be solving numerical problems as of now. So in tutorial classes, mostly we will be doing numerical problems from जो हम लोग पहले सीखे हैं उससे numerical problems समझेंगे। अभी ये 1 मिनट में so let's read out second problem. Second problem पढ़ते हैं हम लोग, then we will try to understand it. Okay, so the second problem says find the lowest energy of an electron confined to move in a one-dimensional potential box of length 1 angstrom. तो पहले हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कि सवाल में पूछा क्या जा रहा है, then we will try to understand कि हम लोगों ने ऐसा कुछ पढ़ा है क्या और उसको हम कैसे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फाइंड द लोएस्ट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई इलेक्ट्रॉन है जिसकी हम सबसे कम एनर्जी, पॉसिबली कितना कम एनर्जी उसका हो सकती है, वी वांट टू नो दैट। और वो जो इलेक्ट्रॉन है ये वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स में कन्फाइंड है और जिसका लेंथ 1 एंगस्ट्रॉम है। अब एक ऐसा बॉक्स एज्यूम करना है जो 1 डायमेंशनल है। जैसे हम लोगों ने जब पहले पार्टिकल इन ए बॉक्स प्रॉब्लम समझने का कोशिश कर रहे थे, सो एट दैट टाइम आई टोल्ड कि जब हम लोगों ने माना कि इलेक्ट्रॉन फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करते हैं, इलेक्ट्रॉन गैस मॉलिक्यूल की तरह नहीं है, तो जो एनर्जी वहां पे डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी से निकाल लिए थे वो एनर्जी यहाँ पे यूज नहीं कर पाएंगे, हमको एनर्जी फिर से निकालना पड़ेगा। तो हम लोगों ने क्वांटम मैकेनिकली पार्टिकल इन बॉक्स का श्रोडिंगर इक्वेशन लगा के उसका एनर्जी फाइंड आउट किया। सो वी यूज दैट रिजल्ट डायरेक्टली, एक एनर्जी का फॉर्मूला आया था और इसमें जैसे देखे कि क्या क्या चीजें दिया हुआ है। सो वी हैव पार्टिकल, हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन है और जो बॉक्स है वो 1 डायमेंशनल है और उसका लेंथ 1 एंगस्ट्रॉम है। सो लेट अस गो बैक where we were discussing this thing. So if you look, particle in 1 dimensional box, ये हम लोगों ने डिस्कस किया है जिसमें हम लोगों ने श्रोडिंगर इक्वेशन लगा के सॉल्व किया। सो इफ यू लुक एट दिस एनर्जी एक्सप्रेशन, यहाँ पे आया था कि कोई nth लेवल है, एनर्जी लेवल nth,
उसका एनर्जी क्या होगा इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला. सो En इज इक्वल टू h स्क्वायर n स्क्वायर अपॉन 8ma स्क्वायर. सो क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे हम देखते हैं. n इज द n वेरीज फ्रॉम 1 to 3 4 ऐसे करके एनर्जी लेवल वेरी करते हैं. m is the mass of the particle, a is the length of box, h is the Planck's constant. तो जो कांस्टेंट है उसका वैल्यू तो हमको पता होना चाहिए. नहीं पता होता है तो वो कहीं ना कहीं एग्जाम में अगर ऐसा पूछा जाएगा तो दिस वैल्यू विल बी प्रोवाइडेड. सो दिस इज एन कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट एक इसका नंबर होता है. देन h अपॉन कहीं कहीं पे किसी किसी किताब में क्या रहेगा, h अपॉन 2 पाई को h बार लिखते हैं. h के ऊपर थोड़ा सा कट का निशान लगा होगा, उसको h बार बोलते हैं. This is equal to h upon 2 pi. So this formula you may find in some books at h bar square pi square n square upon 2ma square. So वहां पे h bar की जगह पे हम लोग h upon 2 pi रखेंगे, so you will get the same formula. So these both are same, but we just need to know that in some books this h bar is there. So h bar is equal to h upon 2 pi. Pi is also a number, is a constant, so you know what is the value of it. n का वैल्यू हमको नहीं पता है. m, since in our numerical this is m is the mass of particle, our particle is electron, so we know mass of electron. a is the length of box, हमारा जो numerical problem है उसमें length of box दिया है 1 angstrom. तो सिंपली हमको ये फॉर्मूला लगाना है और इस फॉर्मूला से हम लोग उस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे. n का वैल्यू क्या होगा ये हमको अभी सोचना है. तो लेट अस रीड अगेन द प्रॉब्लम. इट सेज लोएस्ट एनर्जी. लोएस्ट एनर्जी कब होगा? लोएस्ट एनर्जी कब होगा? जब n का वैल्यू मिनिमम होगा. n इज द एनर्जी लेवल. एनर्जी लेवल जैसे n का वैल्यू बढ़ते जाएगा वैसे एनर्जी लेवल का एनर्जी बढ़ते जाएगा. So it means n is equal to 1, a is equal to 1 angstrom, m is equal to mass of electron, and h is a constant. उसका एक वैल्यू होता है, वो वैल्यू दिया रहेगा. So you just need to put all this information in that formula, and you will be able to get the answer. तो ऐसे कैलकुलेशन करने के लिए तुमको जनरली एक साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड रहेगा सारे एग्जाम्स में. So you can use your calculator to solve these problems. अब साइंटिफिक कैलकुलेटर कैसे यूज करते हैं ये अगर तुम लोग को अभी नहीं पता है तो you have to buy because कई सारे एग्जाम में कई सारे जगह जरूरत पड़ता है. So you need to get one calculator where you can calculate this directly. So it is not that you have to solve it on everything on your book, but you can do calculation using calculator since calculator is allowed. But still you need to have some concept. जब हम नंबर ये सब रख रहे हैं तो हमको ये पता होना चाहिए. जैसे फिजिक्स जब पढ़ना शुरू करते हैं तो वहां पे सबसे पहले यूनिट पढ़ाया जाता है, यूनिट एंड डायमेंशन इन 12th if you remember. तो सबको हम एक सिस्टम में रखेंगे. तो एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल होता है या इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ऐसे. तो हमको ये एंगस्ट्रॉम में दिया है तो फर्स्ट वी कन्वर्ट एवरीथिंग इन MKS. So we convert into meter, mass of electron in kilogram, and in that unit when we get all the numbers, then you will get the energy in joules. So let us see how I have solved it. So this is the problem. तो हमको यहाँ पे ये पता चल गया. तो हम पहले क्या क्या चीजें ये देख लेते हैं. So here you see the formula is this formula n bar n square pi square h bar square. That is what I am saying h bar. H bar is h upon 2 pi. So this formula is little modified. N square pi square h bar square upon 2ml square. L is the length of box. Somewhere it is A, somewhere it is L. It doesn't matter what you use, but we have to use some standard notations. So for length you can use A, for length you can use L, but you need to know what it is. तो हम सही नंबर रखेंगे. तो पहले तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है, उसको हमने लिख लिया. m
is the mass of electron. It is given by 9.11 into 10 to the power minus 31 kilogram. So this is mass of electron. So we know m. H bar का value क्या होता है? It is written here. It will be given in the exam. If whenever it is asked, H bar H जो भी value है वो दिया रहेगा. तो H bar का इसमें direct value दिया है. It is 1.054 into 10 to the power minus 34 joule second. And अगर हमको जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है तो ये कन्वर्जन फॉर्मूला दिया है. 1 eV is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 joule. So joule and electron volt can be converted with that. Length L is equal to 1 angstrom. Angstrom हम लोग ऐसे यूज नहीं करेंगे. We will convert into meter. So it becomes 10 to the power minus 10 meter. 1 angstrom is equal to 10 to the power minus 10 meter. Since it is asking lowest energy, so N is equal to 1. Now we have everything. We just need to put this in formula. So N is equal to 1 हम लोग रख रहे हैं, इसलिए हम लोग इसको E1 बोल रहे हैं. E1 is the lowest energy. So E1 is equal to N की जगह पे 1 रख दिया. 1 square pi square h bar square upon 2 ml square. Then 1 square तो 1 हो गया. This is pi square. This is value of h bar. H bar यहाँ पे रखा है, इसका square. Then 2 into this is m and this is L square. अब ये ऐसे लिखा है, इसको अभी साइंटिफिक कैलकुलेटर अगर तुम्हारे पास हो तो यू कैन पुट ऑल दिस थिंग्स इन वन एक्सप्रेशन एंड पुट इक्वल टू एंड यू गेट दिस नंबर. बट साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करने के लिए भी थोड़ा सा उसमें भी सीखना पड़ेगा. तो पहले तो चीज जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ज्यादातर बच्चे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स गलत करते हैं. उसका रीजन ये होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल दे फॉरगेट टू कन्वर्ट इट इनटू प्रॉपर यूनिट्स. अगर हम सही यूनिट में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो रिजल्ट गलत आएगा. तो पहले तो हमको एक यूनिट में कन्वर्ट करना होता है. फिर जब हम कैलकुलेशंस करते हैं तो जैसे यहाँ पे तो सब मल्टीप्लिकेशन हो रहे हैं, कहीं पे कुछ एडिशन होता है, कुछ होता है, तो अगर हम उसमें प्रॉपर ब्रैकेटिंग का यूज नहीं करेंगे साइंटिफिक कैलकुलेटर में तो गलत सलत रिजल्ट आएगा. सो यू नीड टू नो हाउ टू यूज कैलकुलेटर बिफोर. या तो तुमको इतना कैलकुलेशन आना चाहिए कि ये सब कुछ कैलकुलेट कर लो. तो वो कैलकुलेट करना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है कि लाइक इफ यू हैव सम नंबर डिजाइन इन अ वे कि उनको काट पीट के लेके आ सकते हैं. बट कई बार बहुत सारे ऐसे एग्जाम होंगे जहाँ पे कैलकुलेटर नहीं अलाउड होगा, तो वहां पे तुमको कैलकुलेट करने आना चाहिए. बट हियर सिंस यू हैव एक्सेस टू कैलकुलेटर, सो यू नीड टू लर्न हाउ टू यूज प्रॉपरली. इसको हम कैसे प्रॉपरली यूज करें. So this expression is there. पाई का उसमें डायरेक्ट पाई लिख सकते हो अपने आप कैलकुलेटर. साइंटिफिक कैलकुलेटर में बहुत सारे ऐसी चीजें, बहुत सारे इक्वेशन, बहुत सारे इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये सब कुछ उसमें डायरेक्टली कर पाते हैं. So that is why you need to learn it. So this value comes in joule. 6 into 10 to the power minus 18 joule. This is the lowest energy of electron. Then we convert it in EV. तो EV में कन्वर्ट करने के लिए ये फार्मूला है. तो जूल को ईवी में कन्वर्ट करना होगा तो इसको इस नंबर से डिवाइड कर देना है. जस्ट डिवाइड इट एंड पुट इट इन कैलकुलेटर, यू विल गेट 37.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. So this was very easy problem, but there are few things to learn. कि जैसे यूनिट का ध्यान रखना और कैलकुलेटर में जब कैलकुलेट करें तो प्रॉपर उसका ब्रैकेटिंग करना बहुत जरूरी है. अगर तुम प्रॉपर ब्रैकेटिंग नहीं करोगे तो मेनी टाइम्स यू विल हैव रॉन्ग रिजल्ट. एंड नॉर्मल टेंडेंसी ये होता है कि लोग बोल देते हैं कैलकुलेटर खराब है, कैलकुलेटर अच्छा नहीं कर रहा है. वंस हैपेंड विद मी, एक मेरा बॉटनी का साथी था. मतलब जब मैं बीएचयू में एमएससी कर रहा था, वहां से एक बीएचयू में बॉटनी के बच्चे, जनरली जो बायोलॉजी के बच्चे होते हैं उनको मैथमेटिक्स को लेके बड़ा डर होता है. तो वो मेरा कैलकुलेटर मांग के ले गया और उसने कुछ कैलकुलेट किया तो 2/3 जैसे कुछ नंबर आ रहा है जो फ्रैक्शन में है. तो कैलकुलेटर में जब तुम कैलकुलेट करोगे तो फ्रैक्शन की तरह ही दिखाएगा. बट देयर इज एन ऑप्शन, यू कैन कन्वर्ट इट इनटू डेसिमल नंबर. सो ही डिडंट नो दैट. वो पूरा कैलकुलेट किया और बाद में उसका फ्रैक्शन ही रह गया. सो ही केम बैक आफ्टर एग्जाम, बोला कि कैलकुलेटर तो ये बेकार है, इसमें जो
2/3 का वैल्यू चाहते हैं तो 2/3 का इज इक्वल टू 2/3 लिखा है। तो मैंने उसको बताया कि देखो इसको ऐसे यूज करते हैं, यू कैन कन्वर्ट इट इनटू लाइक दिस। तो कोई भी टूल्स है, वी हैव टू लर्न इट हाउ टू यूज इट प्रॉपरली, तभी वो हमको प्रॉपर रिजल्ट देगा और प्रॉपर आंसर आएंगे। तो जो साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है उसको सीखना भी अपने आप में कई सारे चीजें उसमें होती हैं। यू कैन सॉल्व इक्वेशंस, यू कैन सॉल्व इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, a lot of calculations can be done using scientific calculator. So you all will be buying a scientific calculator for use in different papers. फिजिक्स में जैसे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करना है उसके लिए यूज होगा और कई सारे जगह तुमको जरूरत पड़ेगा। तो उसको प्रॉपरली यूज करना, सीखना और उसके जो प्रॉपर कन्वेंशन होते हैं उनको समझना जरूरी है। एंड यू आर स्टूडेंट इन कंप्यूटर साइंस, सो इट इज वेरी इजी फॉर यू, बट इट इज स्टार्टिंग। तो हम लोग जब कुछ शुरू करते हैं तो धीरे धीरे चीजों को सीखते सीखते ये सब चीजें बहुत सामान्य हो जाएंगी। लेकिन अभी 10+2 करके आए हैं, यू हैव स्टार्टेड योर कोर्स, सो we should be doing a lot of things slowly, रोज कुछ कुछ सीखेंगे and then we'll become expert one day. तो ये हो गया, दोनों प्रॉब्लम हम लोगों ने सॉल्व कर ली। अब ये प्रॉब्लम में तो मुझे लगता नहीं किसी को समझ में नहीं आया होगा, तो डायरेक्ट फॉर्मूला में रखना था और हम लोगों ने वो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज भी किया था।